Good morning, all. So, today's lesson is going to start with very important topic that is called reaction in solutions. Now, different kind of reactions are taking place. Right? You have already gone through many kind of reaction in 10th standard, like combination reaction, displacement reaction, double displacement reaction, right? Decomposition reaction, exothermic reaction, endothermic reaction, oxidation reaction, reduction, redox. All these are the particular reaction. But in this reaction, the concentration of the solution, particularly the concentration of the solution, let us start with it, right? The concentration of the solution, concentration of the solution or amount of substance present in it, substance present in its given volume, which is already given volume, can be expressed. It can be expressed by the following ways, right? Number one, that is mass percent. मास परसेंट और वेट परसेंट, और इससे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया दैट इज डिफरेंट, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन था, राइट? दिस इज मास परसेंट मीन्स परसेंटेज वेट टू वेट. इससे बाद आपको 12th में परसेंटेज वॉल्यूम भी आएगा, एंड सो परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम भी आएगा, एंड बहुत सारे और भी वे आएंगे पढ़ने के लिए. Second one, that is known as mole fraction. मोल हमने काफ़ी thoroughly डिस्कस किया हुआ है, and now this is mole fraction, which is denoted by x. Okay. Third one, very important point, that is known as molarity, which is denoted by capital M. And fourth one, that is molality, that is small m. These four are mainly expressed the concentration of the solution or amount of substance present in the solution. From these 3-4 methods, one more is there, एक है that is normality, राइट? एन एक आएगा परसेंटेज वेट टू वॉल्यूम भी हम फाइंड कर सकते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम टू वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं. ये सब है हमको 12th में आएगा. अभी हमको क्या डिस्कस करना है? 1, 2, 3 एंड 4. मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोलालिटी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट one, that is mass percent. Okay, now what is the formula to find out mass percent? Percentage W upon W. अभी यहाँ पे सोचना है कि मास परसेंट डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू यानी दोनों मास के कंसेंट में ही है. सो एक चीज़ अभी दिमाग में डाल लो कि कोई भी सोल्यूशन में दो चीज़ होती है, एक सॉल्यूट होता है
प्लस उसके अंदर हम सॉल्वेंट यूज करते हैं। यहाँ पे जितने भी जगह पे हम कॉन्टेक्स्ट में यूज करेंगे तो सॉल्वेंट के लिए ए और सॉल्यूट के लिए बी यूज करेंगे। यानी कोई भी एक्स ए बी 9b ए बी एन बी, तो उस तरीके का हम यूज करेंगे। सो सॉल्यूट के लिए बी एंड सॉल्वेंट के लिए ए। नाउ सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट मीन्स, एक सिंपल एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज शुगर सॉल्यूशन है, तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर शुगर इज कंसिडर एज solute and water is considered as solvent. जो ज़्यादा है which is in higher quantity that is known as solvent, which is in lesser quantity in the solution that is known as solute. Okay, so this sugar is considered as solute and water is considered as solvent. So how can we write this particular formula? So percentage तो definitely 100 तो होगा ही होगा। So our formula is percentage W upon W, that is equal to mass of solute divided by mass of solution multiply by 100। परसेंटेज इसलिए 100 हम लिखते हैं, राइट। मास ऑफ सल्यूट जितना है अपॉन सोल्यूशन का टोटल मास इनटू 100। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विथ वन सिंपल एग्जांपल। ओके, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, a solution is prepared by adding 2 gram of substance A। सी यहाँ पे दिया है substance A to 18 gram of water। Calculate the mass percent of the solute। नाउ मास परसेंट ऑफ सल्यूट। सल्यूट क्या है, सबसे पहले अभी कि सॉल्यूशन जो प्रिपेयर किया हुआ है उसके अंदर ये 2 ग्राम जो सॉल्यूशन, 2 ग्राम सॉल्यूशन बनाने के लिए ये पर्टिकुलर दैट इज सब्सटेंस ए, तो दैट इज नोन एज सॉल्यूट। और वाटर है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है 18 ग्राम, तो डेफिनेटली इट इज सॉल्वेंट। सो हाउ कैन वी सॉल्व इट? सो सिंपल, अप्लाई द फॉर्मूला, राइट। फॉर्मूला जो हमारे पास है उसको हम अप्लाई करते हैं। मास परसेंट ऑफ ए, मास परसेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 2 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए अभी ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्यूशन यानी 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मास का जो सॉल्यूशन का जो मास हम कंसिडर करते हैं वो दोनों टोटल होता है, से 2 ग्राम भी होता है और 18 ग्राम भी। 18 प्लस 2 तो ये हो गया 20। सो 2 अपॉन 20 ग्राम, राइट। 2 ग्राम अपॉन 20 ग्राम, सो ग्राम ग्राम कैंसल, 2 अपॉन 20 विच इज 10%। यानी ये हो गया हमारा मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। सिंपल, दैट इज 10%। ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जिससे हम ये समझ सकते हैं दिस इज मास परसेंट। ओके,
mass of the solute upon solution into 100. Okay, now let us consider the second method, that is second method, that is mole fraction. राइट, ये मोल फ्रैक्शन समझने के लिए बहुत एक सिंपल सा फंडा है. मोल फ्रैक्शन समझना है तो सबसे पहले रेशियो हमको मालूम होना चाहिए. फ्रैक्शन आएगा यानी रेशियो. सो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स पर्टिकुलरली द कंपोनेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन. कैसे कि मान लो कि कोई पर्टिकुलर दो सब्सटेंस दिए हुए हैं, एक ए है और एक बी है. राइट, ये दो हमको पर्टिकुलरली कंपोनेंट्स कोई सॉल्यूशन के अंदर है. राइट, तो उसमें हमको सपोज ये ए मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एक्स, जो मैंने बता दिया है ऑलरेडी. इट इज डिनोटेड बाय एक्स. सो इसमें क्या करना है, एक्स ए, अगर हमको ए कंपोनेंट है इसका ढूंढना है, सो दैट इज फाइंडिंग बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. इन सॉल्यूशन. अगर इसको हम लिखे फॉर्मूला के टाइप में तो ये बन जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb. दिस इज आवर फॉर्मूला. अगर मोल फ्रैक्शन ढूंढने को बोला जाए तो ये आएगा मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस. ये सबसे पहले दिमाग में डालना है. इट इज यूनिटलेस, इसमें कोई यूनिट नहीं होता है. वैसे ही सपोज एक्स बी ढूंढने को बोला जाए तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, सिर्फ ये चेंज होगा, विच इज एन बी हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एन ए प्लस एन बी. सिंपल. दिस इज अवर मोल फ्रैक्शन. इससे हम दोनों पर्टिकुलर में कौन कौन से मोल फ्रैक्शनेट हुआ है वो हमको मालूम पड़ता है. सपोज ये 0.4 है तो ये कितना आएगा, 0.6 आएगा. और एक चीज़ याद रखना है इसमें, सपोज ये दो कंपोनेंट की हम बात करते हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. मोल फ्रैक्शन टोटली 100 पूरा है, फुल गण के कंसिडर करके चले तो एक ही आने वाला है. सपोज तीन कंपोनेंट है तो एक्स ए, राइट, सपोज ए है, बी है एंड सी, तीन कंपोनेंट दिए हुए हैं. तो एक्स ए के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी. राइट, एक्स बी के लिए क्या करना पड़ेगा, एन बी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी. राइट, क्लियर हो रहा है. एंड एक्स सी के लिए क्या करना पड़ेगा, एन सी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी. सो अल्टीमेटली एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी क्या हो जाएगा, 1. लाइक दिस. आ गया समझ में. ये तो बहुत इजी है. दिस इज मोल फ्रैक्शन. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट that is very very important. Third point, that is molarity. Okay, इससे हम थोड़ा अलग से डिनोट करते हैं, सो आपको भी इसका इम्पोर्टेंस मालूम पड़ जाए. सो थर्ड वन, जब भी लैब में कैलकुलेट करने जाओगे, जब भी लेबोरेटरी में कुछ काम होता है विच इज़ कम्प्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूनिट्स, ये कॉन्सेंट्रेशन मेजर करता है. मोलारिटी दैट इज कैपिटल एम, कैपिटल एम, एम बराबर एम फॉर
कुछ भी बोल दो, M for मैंगलोर, नॉट बैंगलोर, M for मैंगलोरू. So M for Maharashtra, so capital M. And it is defined as molarity. मोलारिटी जो है वो डिफाइंड होता है एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है. M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ये फॉर्मूला है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. अभी अभी स्टार्टिंग में बात की कि इसमें हम जो सॉल्यूट है उसके लिए क्या डिनोट करते हैं, बी कंपोनेंट, और जो सॉल्वेंट है उसके लिए ए. सॉल्वेंट और सोल्यूशन किसके लिए बी, क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम रहता है, सो डेफिनेटली उसको भी सोल्यूशन के लिए भी ए यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे अभी फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सो M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, N, एंड सॉल्यूट सो B अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो एक सिंपल लिख देते हैं वॉल्यूम इन लीटर. अभी सोचो NB जो है नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम डिनोट कर सकते हैं कैसे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास और मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ऐसे डिनोट कर सकते हैं, राइट. स्मॉल m की जगह पे मैंने W यूज किया, वेट किया मास की जगह पे, सिंपल, राइट. सो फॉर्मूला क्या बनेगा, फाइनल फॉर्मूला हमारा जो बनेगा मोलारिटी के लिए, दैट इज NB तो निकल गया अभी, सो WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं ए. तो ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला. ये हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट. ये हो गया हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ए, राइट. सो दिस इज आवर फॉर्मूला टू फाइंड आउट मोलारिटी. एक अच्छी तरीके से लिख देते हैं, M इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू VA. ओके, ये हो गया हमारा मोलारिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला. तो उसके लिए मोलारिटी फाइंड करने के लिए एक एग्जाम्पल से हम इसको सॉल्व कर देते हैं. सो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमको कि कैलकुलेट द मोलारिटी, कैलकुलेट the molarity for a solution prepared by, for a solution prepared by 4 gram of dissolving, हमारा है 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन. अंडरलाइन इसीलिए किया क्योंकि इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे हमको दे दिया है 250 ml विच इज इन सोल्यूशन, राइट, और ml है, और हमको एज पर फॉर्मूला क्या लिखना है,
It is in liter, it should be in liter. Okay, so let us start this with first segregate it. How can we segregate it? इसमें 4 ग्राम NaOH है, सो सबसे पहले दिमाग में डाला है दैट इज सॉल्यूट. सो वेट दे दिया है दैट इज 4 ग्राम. अभी वेट दे दिया है तो इसका मोलर मास ढूंढना पड़ेगा. ओके, सो मोलर मास Na एटॉमिक मास ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का. Na का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, सो टोटल बन जाएगा 40 यूनिट्स और 40 ग्राम पर मोल. नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम की बात करते हैं हम. वॉल्यूम जो दिया है दैट इज 250 ml. इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000, सो ये बन जाएगा 0.25 लीटर. तो हमारे पास तीनों पैरामीटर्स आ गए. WB भी आ गया, MB भी आ गया और वॉल्यूम भी आ गया. तो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं. सो मोलारिटी M दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स. सो WB हमारे पास है 4 ग्राम अपॉन MB हो गया 40 ग्राम पर मोल होता है एंड ये हो गया 0.25 इन लीटर. अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 0.4 और पीछे हम डिनोट करते हैं M से दैट इज मोलर. मोलारिटी ढूंढ रहे हैं इसलिए यहाँ पे आएगा 0.4 मोलर. अगर मोलालिटी ढूंढते तो यहाँ पे आता 0.4 स्मॉल m दैट इज मोलर. ओके, सो ये हो गया हमारा एक कॉन्सेप्ट दैट इज मोलारिटी. वेरी सिंपल और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंटर कन्वर्जन भी आएगा, तो ये याद रखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट दैट इज अवर फोर्थ वन. जो फोर्थ वन जो है उसके लिए हम कुछ अलग कलर यूज करते हैं. सो ये भी आपको मालूम हो जाएगा कि विच इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फोर्थ वन, ओके, फोर्थ वन दैट इज मोलालिटी. मोलालिटी स्मॉल m, मोलालिटी. ओके, नाउ मोलालिटी क्या है? सिंपल डेफिनेशन इज इक्वल टू सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो हमको वही रखना है. सो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by weight of solvent in kg, किलोग्राम. अभी डिफरेंस देखिए, मोलारिटी में क्या था, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था और इसमें क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है केजी के अंदर. समझ रहे हो? सो फॉर्मूला इसके लिए जो बनेगा दैट इज M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो N क्या लिखते हैं हम, NB बाय डिफॉल्ट, एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट, सो एक सिंपल लिख देते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ये हो गया हमारा एक जनरल फॉर्मूला. बट जब नंबर ऑफ मोल्स को हम कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स को जैसे कन्वर्ट होता है तो क्या बनता है, इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg. ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर मोलालिटी. समझ रहे हो? राइट. दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस मोलारिटी जो है, राइट, मोलारिटी जो है, मोलारिटी दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर. मोलारिटी इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. व्हाई? राइट, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, नीचे वॉल्यूम है
So volume of the solution, that is dependent on temperature. That's why ultimately this particular concentration, molarity, is also depending upon the temperature. But molality में नीचे क्या है, weight, which is not dependent temperature. So definitely it is not dependent upon temperature. So यहाँ पे लिख देता हूँ not dependent on temperature, क्योंकि मास है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसीलिए। क्लियर? ये हो गया हमारा मोलालिटी। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। राइट, सपोज वही ऊपर वाला ही ले लेते हैं कि 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम ऑफ NaOH is added to 2 kg of water. Find molality. Okay, molality. So formula M is equal to, तो 4 ग्राम NaOH है तो हमको मालूम पड़ गया कि ये 4 ग्राम है, WB अपॉन MB इंटू WA। सब कुछ दिया है, केजी में ही है तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेते हैं। WB तो 4 ग्राम। मोलर मास इसका NaOH का अभी आगे ढूंढा हमने 40 ग्राम। WA दे दिया है, दैट इज 2 kg। राइट, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ये सब ग्राम ग्राम में है, ये ग्राम ग्राम कैंसल, 4/40 2 kg है। सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 1/20 मोलल पर kg। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं 1/20। सो दिस इज इट। ये 4 हो गए हमारे कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट जो हमने देखा दैट इज मास परसेंट, सेकेंड देखा मोल फ्रैक्शन, थर्ड देखा मोलारिटी, एंड दिस इज फोर्थ वन विच इज मोलालिटी। ओके, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, एक 2 टॉपिक एक हमारा बाकी रह गए हैं तो वो हम साथ में ले लेते हैं। एक टॉपिक जो है विच इज नोन एज स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले स्टोकियोमेट्री क्या है, व्हाट इज स्टोकियोमेट्री? सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। 2 ग्रीक वर्ड है, एक है स्टोइकियन, स्टोइकियन मीन्स, इसका मीनिंग जो होता है विच इज एलिमेंट। राइट, और दूसरा तो हमको मालूम है मेट्रॉन, जिसका रहता है मेजरमेंट। बराबर? हाँ, स्टोकियन मीन्स एलिमेंट, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, तो इसके ऊपर से। सो व्हाट इज स्टोकियोमेट्री? सो इट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मास। इट डील्स विद calculation of mass, sometimes volume also, right? Sometimes कभी कभी वॉल्यूम में भी यूज हो जाता है। and what kind of reactants and products are involved into the reaction, that is also important, right? Calculation of mass or volume of reactants and products involved in it. Okay, so this is it. Now next, that is kaise. So let us understand this concept in one example. CH4 gas plus O2 gas gives CO2 gas and water.
This is unbalanced equation. Okay, so how can we balance this equation? तो बैलेंसिंग द इक्वेशन तो मालूम है, कार्बन कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है, सो डेफिनेटली आगे क्या आ जाएगा 2. सो 4 ऑक्सीजन 2 + 2 4, सो हियर ऑल्सो 2. सो बैलेंसिंग द रिएक्शन. सो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन, CH4 2 O2 CO2 2H2. तो इसमें रिएक्टेंट क्या है? सो ये दोनों जो है दैट इज रिएक्टेंट्स, बराबर. और ये दोनों जो है दैट इज आवर प्रोडक्ट्स, और जिसको हम बाय प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन और वाटर को. नाउ अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बैलेंस हुआ ये 2 2. व्हाट इज दिस 2? सो दिस 2 हियर, 2 is known as, it is known as stoichiometric, it is known as stoichiometric coefficients. they are known as coemetric coefficient. यहाँ पे 2 है, अगर उससे एक ज़्यादा होता तो कोफिशिएंट्स आते, ठीक है. लेकिन इसके लिए क्या लिख सकते हैं? सो इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर टेकिंग पार्ट इनटू द इक्वेशन और रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन. सो व्हाट कैन वी से फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन? सी, लिसन केयरफुली. CH4, 1 mole of methane gas is reacting with 2 moles of oxygen gas which produce or which gives 1 mole, आगे कुछ नहीं लिखा है इसलिए 1 कंसिडर करना है, 1 mole of carbon dioxide gas plus 2 moles of water. समझ रहे हो? यानी 1 मोल मीथेन है, reacts with 2 moles of O2 gas which produces 1 mole of CO2 gas and 2 moles of water. Clear? This is stoichiometric calculation. अगर हमको दूसरी तरीके से बोलना है तो इसको कैसे बोल सकते हैं? सी, 1 molecule of methane gas, 1 molecule of methyl gas reacts with 2 molecules of oxygen to give 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecules of water. Right? मोल की जगह हमने यहाँ पे यूज कर लिया molecules. अगर वॉल्यूम में कंसिडर करके चलना है तो जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से चलते हैं तो 22.7 लीटर इज अ स्टैंडर्ड, राइट. 22.7 लीटर एक मोल के लिए होता है. सो ये हो गया 22.7 लीटर इंटू 2, अराउंड 45.4. 45.4 ऑक्सीजन, liter of oxygen to give again 22.7 into 45.4 liter of water. जैसे जैसे ये आप पढ़ोगे तब तो आता जाएगा, लेकिन अभी याद रखना है. ओके, 12 कार्बन का एटॉमिक मास प्लस 4, सो 16. सो 16 ग्राम, अगर मास के कंटेंट्स में बात करनी है तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विथ, ऑलरेडी 32 है, 16 32 2 जा 64 gram of oxygen molecule reacts to give 12 plus 32 44 gram of carbon dioxide and 18 2 जा 36 gram of water. 16, 64, again 44 and 36 अगर मास के कंटेक्स्ट में बात करनी है. So what can we say? What are the relations can we denote from this? So we can say that the mass जो है, moles जो है, and number of molecules जो है,
हम तीनों को इक्वेट कर सकते हैं। हाँ, मास है, मोल्स है एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हम तीनों को इक्वेट कर सकते हैं। इससे हम मालूम पड़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। आ गया समझ में? राइट? अगर इसको हम मोल में कन्वर्ट करके लिखना है तो भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, अगर लीटर में करना है वॉल्यूम के हिसाब से तो 22.7, यहाँ पे जो कोफिशिएंट से उससे मल्टीप्लाई कर लो तो दैट इज अनदर रिएक्टेंट, राइट? 22.7 इंटू 45.4। अगर मास में कन्वर्ट करना है तो इसके मोलर मास ढूंढ लो। 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 32 ऑलरेडी है, मॉलिक्यूल 2 आर 64 ग्राम ऑक्सीजन, 12 प्लस अगेन 32 तो 44 एंड 36। क्लियर? So this is stoichiometry. And last topic of this chapter, that is known as limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट जो है कुछ नहीं है, एक सिंपल सा लॉजिक इसमें यूज करना है कि मैनी टाइम्स व्हाट हैपन कि इन रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर नॉट इन सफिशिएंट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द बैलेंस इक्वेशन. ओके, सो इन दिस सिचुएशन वन रिएक्टेंट इज डेफिनेटली एक्सेस ओवर अदर. एक रिएक्टेंट दूसरे से ज़्यादा है. सो क्या होता है, द रिएक्टेंट विच इज इन लेसर अमाउंट विल बी कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम. विच इज इन लेसर अमाउंट, हमारे पास सपोज 5 किलो शुगर है और 2 किलो शुगर है, तो पहले कौन सी ख़त्म होगी अगर हम यूज़ करते तो डेफिनेटली 2 kg वाली. सो लाइक दिस, सो 5 kg एंड 2 kg, तो 2 kg डेफिनेटली पहले ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी का क्या सर. तो रिएक्टेंट विच इज गेट कंज्यूम्ड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. इट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट. एक सिंपल मैं फंडा से समझा देता हूँ. एक ए है, कोई रिएक्टेंट है, कोई बी रिएक्टेंट है. ओके, ए प्लस बी है. ए है कोई एक्स क्वांटिटी में है, वाई है और बी है वो वाई क्वांटिटी में है. इन दोनों का जब रिएक्शन होता है तो ए है हमारे पास कम है, तो ये जैसे कंज्यूम हो जाएगा उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म करना बंद कर देगा. एक्स है वो कंज्यूम हो जाएगा जितना भी है, एक बार जो कंज्यूम हो गया तो वो बाद में प्रोडक्ट फॉर्म करना बंद कर देगा. राइट? तो इसमें सपोज ये एक्स के लिए सपोज हमने यहाँ पे यूज किया है 2 ग्राम, मान लो एक एग्जांपल, तो यहाँ पे भी 2 ग्राम ही होगा. इसके बाद अगर आगे रिएक्ट किया तो इसमें अगर हमने 5 ग्राम भी लिया हुआ है तो बाकी के 3 ग्राम एज इट इज पड़े रहेंगे, क्योंकि उसने 2 ग्राम का ही हमको प्रोडक्ट दिया है. सो इस कंडीशन में जो लेसर क्वांटिटी में है दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएजेंट. एज सिंपल एज दैट. जो कम है, जो रिएक्शन में जल्दी से खत्म हो जाएगा, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट. बात खत्म. वेरी इजी टॉपिक. ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं. 50 ग्राम, चलो इसमें एक काम करते हैं, थोड़ा केजी में करते हैं. ये जो मेथड है बुक से थोड़ा अलग है, बुक में आपको दिया है उससे, बुक का ही एग्जांपल है. 50.0 किलोग्राम ऑफ N2 गैस ये दिया हुआ है, एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है. दे आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब भी मिक्स होते हैं तो अमोनिया ही प्रोड्यूस करते हैं, हमको मालूम है. नाउ कैलकुलेट दिस अमाउंट, कैलकुलेट कितना अमोनिया प्रोड्यूस हुआ. राइट? एंड व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट? आइडेंटिफाई the limiting reagent.
ये सिचुएशन में क्या है ये हमको ढूंढना है। 50 kg N2 है, 10 kg H2 है, NH3 प्रोड्यूस हुआ, कितना हुआ और लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका इक्वेशन लिखना है, बैलेंस इक्वेशन। सो N2 गैसियस फॉर्म में, थ्राइस H2 भी गैसियस फॉर्म में, सो बन गया ट्वाइस NH3, राइट। ये हो गया हमारा सबसे पहला बैलेंस इक्वेशन। नाउ थिंक दैट हियर नाइट्रोजन को अगर मोलर्स मास 14 एंड डबल 28 kg N2 that reacts with 3 to the 6 kg of hydrogen, that reacts with 6 kg of hydrogen। तो आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, 50 kg of N2 में कितना हाइड्रोजन यूज होगा, कैलकुलेट कर लीजिए। 6 kg इंटू 50 kg क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 28 kg। सो आंसर आ जाएगा 10.7 kg ऑफ H2। इतना रिक्वायरमेंट है, लेकिन है कितना, 10 ही, बट वी हैव 10 kg of H2। So here H2 is the limiting reagent। क्लियर। रिक्वायरमेंट कितनी थी, 10.7, लेकिन आया कितना, अरे 10 ही है हमारे पास, तो डेफिनेटली कम है। कम है तो क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। अभी क्या करना है, NH3। अभी यहाँ पे देखो 6 kg हमारे पास H2 है, 3 to the 6, 3 to the 6, 6 kg of H2 that requires NH3 कितना बनेगा, 14 and 3 17, 17 through the 34 kg of NH3। अभी कितने में बनाना है, 10 kg में बनाना है, तो 10 kg of H2 में कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 34 kg इंटू 10 kg डिवाइडेड बाय 6 kg। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 56.67 kg ऑफ अमोनिया विच इज रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड है। क्लियर। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट लिमिटिंग रिएजेंट। विद दिस वी आर कंक्लूडिंग दिस चैप्टर। एक बार और देख लेते हैं, N2 + 3H2, ये हो गया इक्वेशन। N2 N का 14 2 ज़ा 28, N2 के लिए 6 kg हाइड्रोजन चाहिए, तो 50 जो हमको दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, उसके लिए कितना, सो 10.7। एक्चुअली 10.7 रिक्वायर है, लेकिन है कितना, 10 kg है। सो हाइड्रोजन इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट। एंड एमोनिया कितना प्रोड्यूस हुआ, तो पर्टिकुलरली 6 kg के अंदर अगर एमोनिया 14 + 3 17 2 ज़ा 34 kg हम NH3 प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमारे पास जितनी क्वांटिटी है 10 kg ऑफ H2 में कितना प्रोड्यूस करे, क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर। सो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप आज का सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा और काफ़ी नया नॉलेज आपको मिला होगा इसके अंदर से। सो अच्छी तरीके से असाइनमेंट की प्रैक्टिस कीजिएगा एंड संडे को जो टेस्ट है वो अच्छी तरीके से दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।